students, welcome to Masters Concept Series. In the last lecture, we have studied about introduction of network. In that lecture, we have seen multiple communicating devices are interconnected to each other and they can send or exchange the message or they can share the messages. And afterward, we have started switch network, and in that lecture, we have seen circuit switch network and packet switch network. In the circuit switch network, we dedicate the bandwidth or path to the communicating device so that they can send the continuous message to each other. But in packet switch network, we cannot dedicate path or bandwidth to the communicating device. So they cannot send a continuous message to each other. They can send a packet or burst packet to the network. Okay. So each packet is independent to each other, and some header is appended to each packet, and in the header we mention destination address so that each packet individually reach to the destination address. Okay. So all these things we have seen in the last lectures. So but one thing we need to understand that what is the rules, what is the feature we need to implement in the network, and what kind of guidelines we need to follow so that our communicating device can communicate to each other. So in this lecture we will start OSI model. Where network came into existence, जब first time network का यूज start हुआ, that time जो भी कंप्यूटर सिस्टम सेम मैन्युफैक्चरर्स के थे या सेम वेंडर्स के थे, दे कैन ओनली कम्युनिकेट टू ईच अदर. डिफरेंट वेंडर्स के कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे नेटवर्क में. सो दिस काइंड ऑफ बैरियर इज ब्रेक डाउन बाय द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज ISO. सो ओके, सो इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. This organization has created one of the model whose name is OSI model, Open System Interconnection. Okay, this OSI model is the primary architectural model for networks. That is, it is a set of guidelines for the application developers. जो भी application developers अपने application create करते थे और जो भी उन applications को वो अगर उन्हें run करना होता था network पे, then they refer this OSI model. So this OSI model is also called reference model. Okay. So this OSI model is divided into 7 layers. So one by one we will see application layer, presentation layer, session layer, then transport layer, network layer, data link layer and physical layer. So in which mindset this layer is created, that things we need to know. So the same kind of features or same kind of rules or characteristics are grouped together and put at one place. Means जो भी एक जैसे features या rules हैं उनको एक group में bind करके एक layer का form किया गया. So there are 7 layers here. So application layer having certain rules. This layer will provide interface to the user, and also presentation layer and session layer also dedicated for the particular computer system, particular node. But afterward, next 4 layers, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. This 4 layer is used to send the message from one computer system to another computer system. Okay? तो इसका मतलब है कि ये जो लास्ट की जो 4 लेयर है, दिस डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड टू एंड. वेल, फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड इंटरफेस टू द यूजर एंड ऑल्सो दे विल प्रोवाइड मल्टीपल सर्विसेज सच एज ईमेल सर्विस, जिसमें यूजर किसी को मेल कर सकता है किसी अदर यूजर को, और जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं. देन ऑल्सो वी कैन रिमोटली एक्सेस द फाइल और वी कैन transfer the file to each other. So to perform these tasks we need some protocol. So application layer will provide multiple protocols like HTTP, DNS, FTP, SMTP and POP. जैसे किसी भी यूजर को अगर कोई वेब पेज एक्सेस करना है, then he will first execute one process
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेब ब्राउजर. सो जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट. ठीक है. एंड हम जिसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जो रिसीव करेगा, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर. ठीक है. सो वेब क्लाइंट will send a request to the web server and web server will send required page to the client. So they are using some rule or some protocol for this transmission. इस transmission के लिए जो भी हम request send कर रहे हैं और हमें receive हो रहा है, so इस task को perform करने के लिए हमें some rules required है, जो कि web browser उस rule को use करता है and that rule is HTTP. So HTTP protocol knows how web client will interact with web server. So web browser need HTTP protocol to communicate with other process. Web browser is one process, he need to communicate with other process web server पे जो execute हो रहा है. So इस communication को establish करने के लिए we need some protocol. That protocol is called HTTP protocol. Similarly, we have multiple protocols in the application layer. Well, second layer is presentation layer. So presentation layer will provide different features. First one is translation. So different computer system uses different code to represent any message. So message में होता है characters होते हैं, decimal number होते हैं, उनको represent करने का तरीका हर एक सिस्टम में अलग होता है. कुछ सिस्टम लिटिल इंडियन यूज करती है, कुछ सिस्टम बिग इंडियन यूज करती है. तो अगर सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट को हम वन कंप्यूटर सिस्टम से अनदर कंप्यूटर सिस्टम पे सेंड करेंगे तो मे बी अदर कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट फॉर्मेट. तो इसके लिए वी नीड ट्रांसलेशन. सो प्रेजेंटेशन लेयर को जो भी मैसेज रिसीव होता है एप्लीकेशन लेयर से, उस मैसेज को वो नेटवर्क फॉर्मेट में या कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देती है. देन दैट फॉर्मेट विल ट्रेवर्स थ्रू द मीडियम एंड रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड. सो एट द रिसीवर एंड प्रेजेंटेशन लेयर में अगेन हम ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं और उस कॉमन फॉर्मेट को हम ट्रांसलेट कर देते हैं रिसीवर एंड के फॉर्मेट में. देन एप्लीकेशन लेयर विल रिकॉग्नाइज दैट मैसेज. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. सो एनी सेंसिबल डाटा वी नीड टू इंक्रिप्ट इन द प्रेजेंटेशन लेयर. जो भी एप्लीकेशन लेयर से मैसेज आ रहा है उस मैसेज को प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्ट करके सेंड करती है रिसीवर एंड को. देन एट द रिसीवर एंड दिस प्रेजेंटेशन लेयर विल डिक्रिप्ट दैट मैसेज एंड फॉरवर्डेड टू द एप्लीकेशन लेयर. एंड थर्ड है कंप्रेशन. कोई भी लार्ज और बिग चंक ऑफ मैसेज को हम डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते हैं किसी मीडियम के थ्रू. सो वी नीड टू कंप्रेस दैट मैसेज. सो वी नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स कंटेन्ड इन द इंफॉर्मेशन. ओके. जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, दिस आर द मैसेजेस. और ये ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट काफी लार्ज साइज का मैसेज है. सो वी नीड टू कंप्रेस इट, देन सेंड इट to the medium. Well, third layer is session layer. So session layer will provide dialog control and synchronization. In the dialog control, when two computer systems communicating to each other, for example, this is our one computer system, यहाँ पे एक application execute हो रहा है, then another computer system, this is a server and one more application is executing. So both application is communicating to each other. So some applications support different kind of mode of communications. कुछ application जो है support करती है full duplex, कुछ application support करती है half duplex mode of communication. ठीक है. अगर हम half duplex communication देखें तो when one application will send the message, then another only receive, and when this computer system will send the message, then this computer system will only receive. It means both is waiting their turn. दोनों अपने टर्न का वेट कर रही है कि कब वो स्टार्ट करेगा कम्युनिकेशन. सो टू कोऑर्डिनेट दिस कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स एंड सर्वर्स टू ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिकेशन वी नीड सेशन लेयर. ओके. एंड सेकेंड पॉइंट इज सिंक्रोनाइजेशन. सो सम एप्लीकेशन needed synchronization point or checkpoint. So this synchronization point is needed
to track the progress of conversation between two communicating devices. और ये चेक पॉइंट और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट इज ऑल्सो यूजफुल ड्यूरिंग एरर रिकवरी. जैसे अगर हमने 2000 पेजेस हमें सेंड करने हैं वन कंप्यूटर सिस्टम से और वन एप्लीकेशन से अनदर एप्लीकेशन के बीच, और ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग दिस मैसेज अगर कोई डिसरप्शन होता है, इन दैट केस वी कैन रिकवर आवर फॉल्ट. जैसे हमारा 2000 पेजेस हैं और अगर हम चेक पॉइंट एवरी 100 पेज पे लगा रहे हैं, सपोज दिस, ओके, एवरी 100 पेज पे हम अपना चेक पॉइंट लगा रहे हैं, एंड सपोज दिस पॉइंट पे हमारा फॉल्ट आया, देन यूजिंग दिस चेक पॉइंट 300 वी कैन वेरीफाई एट विच पॉइंट एरर अकर्ड. ठीक है, तो इस तरह से ये एरर रिकवरी के लिए भी काफी बेनिफिशियल है अगर हम सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंट लगाते हैं. ठीक है, ओके. वेल, थर्ड लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर. जो भी मैसेज अपर 3 लेयर से आ रहा है वो मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर में रिसीव होता है. जैसे हमारा पहला जो लेयर था वो था एप्लीकेशन, दूसरा था प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड था सेशन. दिस 3 layers create a data and this data is received in the transport layer. ये जो बिग चंक ऑफ मैसेज है, बिग डेटा है, दिस डेटा इज सेगमेंटेड इन दिस लेयर, और इस सेगमेंट को हमें सेंड करना होता है वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जब भी कोई ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट, जैसे दिस इज़ माय कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज़ माय क्लाइंट और दिस इज़ माय सर्वर. तो यहाँ से एक एप्लीकेशन, ये है सर्वर पे एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, क्लाइंट विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर. तो जब रिक्वेस्ट यहाँ रिसीव होगा, देन हाउ दिस रिक्वेस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रोसेस, क्योंकि सर्वर पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं. अब ये रिक्वेस्ट किस प्रोसेस के लिए है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने सेगमेंट डिवाइड किया है, उस सेगमेंट में हम एक हेडर अपेंड कर देते हैं. ओके, उसमें हम एक हेडर अपेंड कर देते हैं और उस हेडर में उस प्रोसेस का एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस. तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है पोर्ट एड्रेस. तो हम इसके लिए इस हेडर में एक सोर्स एड्रेस और एक डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन कर देते हैं. यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस इज फिक्स्ड बिकॉज अगर हम वेब पेज के लिए हम यहाँ रिक्वेस्ट देंगे, देन HTTP सर्वर के लिए हमारा पोर्ट नंबर 80 है जो कि फिक्स रहता है. ओके, पोर्ट नंबर HTTP सर्वर के लिए हमारा 80 होगा. हमारा 80 पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट जाएगा और हमें HTTP विल प्रोवाइड द सर्विस. बट एट द एंड ऑफ क्लाइंट पोर्ट नंबर इज रैंडमली जनरेटेड. रैंडमली जनरेटेड पोर्ट हम सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर के लिए हम मेंशन करते हैं. या तो ये 800 भी हो सकता है. 800 पोर्ट नंबर अगर जनरेट हुआ, हु इज जनरेटिंग द पोर्ट नंबर फॉर सोर्स एड्रेस? ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द पोर्ट नंबर एट द सेंडर एंड. वो भी रैंडमली वो जनरेट होता है, कोई भी पोर्ट नंबर इसको मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए. ठीक है, देन यहाँ पोर्ट एड्रेसिंग के थ्रू हम किसी भी मैसेज को सर्वर को या किसी भी अदर कम्युनिकेटिंग डिवाइस को हम सेंड कर सकते हैं अगर उसके प्रोसेस के साथ हमें कम्युनिकेट करना है तो. ठीक है, और ये जो हमने सेगमेंट में डिवाइड किया है, दिस सेगमेंट फाइनली जो है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है मीडियम में, और मीडियम के थ्रू वो रिसीवर एंड पे रिसीव होता है. बट इट गारंटी नहीं है कि अगर रिसीवर एंड पे अगर वो रिसीव हुआ है तो वो एक सेम सीक्वेंस में गया है. ठीक है,
जैसे ये मेरा 1 2 3, इस मैसेज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये सेम सीक्वेंस में जाए, अगर ये पहले रिसीव हुआ फिर ये और ये अपेंड हो जाए। बट अगर सेम सीक्वेंस में नहीं जाता है, क्योंकि हम पैकेट स्विच नेटवर्क में बर्स्ट ट्रैफिक सेंड करते हैं, बर्स्ट पैकेट सेंड करते हैं, और दे यूज डिफरेंट राउट, और फाइनली वो डेस्टिनेशन पे रीच करता है बिकॉज ऑफ सेम डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जब वहाँ रिसीव होता है तो वो डिफरेंट ऑर्डर में रिसीव होता है, तो उस केस में हमें रिसीवर एंड पे रीअसेंबली करनी पड़ेगी उन पैकेट को, ताकि हम फाइनली एक करेक्ट मैसेज हमें मिल सके रिसीवर एंड पे। ओके, वेल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड 2 काइंड ऑफ ट्रांसमिशन. First is connection oriented transmission, second one is connectionless transmission. In the connection oriented transmission, when sender send a packet to the receiver, then receiver will confirm to the sender that yes, I have received your packet, you can send next one. तो ये इंफॉर्मेशन सेंडर को कैसे देता है, तो रिसीवर विल सेंड सम एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर साइड। सी, सो जब भी कोई ये कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और अगर दिस कंप्यूटर सिस्टम विल सेंड सम पैकेट, अगर ये पैकेट रिसीव हुआ देन ये एक्ट भेजता है, ठीक है, और इस एक्ट से मेरा जो ये कंप्यूटर सिस्टम है उसको वो कंफर्म हो जाता है कि यस, माय प्रीवियस पैकेट हैज बीन रिसीव्ड एंड ही विल सेंड नेक्स्ट पैकेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो रिलायबल होता है कि कोई भी पैकेट अगर लॉस हुआ तो सेंडर के एंड इन्फॉर्म हो जाता है कि ये प्रीवियस पैकेट लॉस हो गया है, तो सेंडर कैन रीसेंड दी पैकेट टू द रिसीवर एंड। ठीक है, और टीसीपी में एक मैकेनिज्म है फ्लो कंट्रोल का, कि अगर ओवरवेल्म्ड हो जाता है पैकेट रिसीवर एंड पे, तो उस केस में वो सेंडर विल स्टॉप द सेंडिंग द पैकेट, जिससे कि रिसीवर साइड पे पैकेट लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और सर्वर जो है इजीली किसी भी रिक्वेस्ट को सर्विस दे पाता है। ओके, तो दिस फीचर इज इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। In connectionless transmission, we use user datagram protocol or UDP. UDP is not a reliable like a transmission control protocol because जब भी sender send करता है पैकेट receiver end को, then receiver will not inform to sender that he has received the message. So अगर बीच में अगर कोई पैकेट ड्रॉप भी होता है, लॉस्ट भी होता है, still sender is continuously send the packet. ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें टीसीपी और यूडीपी में, तो यूडीपी इज बेटर कंपेयर टू टीसीपी, बट एज पर रिलायबिलिटी हम देखें देन टीसीपी इज बेटर कंपेयर टू यूडीपी। क्योंकि अगर हमें वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इन दैट केस वी विल यूज यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि वीडियो ट्रांसमिशन में जो है वो हम 24 एफपीएस से वीडियो ट्रांसमिट करते हैं, मीन्स 1 सेकेंड में 24 फ्रेम ट्रांसमिट होता है जब भी हम वीडियो ट्रांसमिट करते हैं। इसका मतलब 1/24 सेकेंड में 1 फ्रेम ट्रांसमिट होगा, और कोई भी व्यूअर 1/1 फ्रेम या 2 फ्रेम भी लॉस्ट हो जाता है तो उसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर यूडीपी की केस में अगर हम यूज करें, तो अगर कोई पैकेट हमारा लॉस भी हो जाता है तो व्यूअर विल नॉट बॉदर अबाउट इट, व्यूअर को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे कि कोई पैकेट लॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी यूज यूडीपी। बट इन द केस ऑफ टीसीपी, अगर कोई भी पैकेट अगर लॉस हुआ, कोई फ्रेम मेरा लॉस हुआ यहाँ, तो उस केस में टीसीपी विल रीट्रांसमिट दैट पैकेट। ठीक है, तो ये आई थिंक देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो काफी बफरिंग होगा अगर वीडियो ट्रांसमिशन में अगर हम टीसीपी यूज करते हैं तो दैट्स व्हाई इन द वीडियो ट्रांसमिशन यूडीपी इज फेवरेबल। ठीक है, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज फॉर एरर कंट्रोल ऑल्सो, जैसे कोई पैकेट डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया या डुप्लीकेशन हो रही है, तो उस केस में भी ट्रांसपोर्ट लेयर इज यूज्ड। Well, our third layer is network layer. So network layer is responsible to deliver the packet from source to destination
अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में देखा था कि टू डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, और वो जो एप्लीकेशन है वो किसी न किसी होस्ट के अंदर होगा। दिस इज वन एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज रनिंग विद इन वन होस्ट एंड दिस होस्ट बिलोंग्स टू सम नेटवर्क। ठीक है, और हमारा जो सर्वर है, सर्वर में भी कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो डिसाइड्स इन वन होस्ट एंड दिस होस्ट बिलोंग्स टू सम नेटवर्क। तो इस प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीच टू दिस नेटवर्क। ठीक है, सो नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए हम लॉजिकल एड्रेसिंग यूज करते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स आईपी एड्रेस। सो जो भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है उसके लिए एक आईपी एड्रेस असाइंड होता है। दिस आईपी एड्रेस इज यूनिक इन द नेटवर्क, और इस आईपी एड्रेस के हेल्प से ही हम किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क तक हम रीच कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर हमने उस सेगमेंट में अपेंड कर दिया था। ठीक है, नाउ दिस मैसेज विल बी रिसीव्ड इन द नेटवर्क लेयर, और ये जो मैसेज है दिस इज अ सेगमेंट। तो जब वो नेटवर्क लेयर में आएगा तो हम नेटवर्क लेयर का हेडर अपेंड कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने देखा था जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, अगर हम टीसीपी यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ टीसीपी का हेडर लगाएंगे, अगर यूडीपी यूज कर रहे हैं तो यूडीपी का हेडर लगाएंगे। बट इन नेटवर्क लेयर हम नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल को यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं आईपी। अगर हम IPv4 यूज कर रहे हैं देन वी विल यूज IPv4 हेडर एज अ फॉर्म, एज ए हेडर। सो यहाँ पे हम यहाँ नेटवर्क लेयर का हेडर अपेंड कर देंगे इस सेगमेंट के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड पैकेट। ओके, दिस पैकेट इज सेंड वाया दिस ट्रांसमिशन मीडियम, और वो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन नेटवर्क पे रीच करेगा। ठीक है, तो इस पैकेट को रिक्वायर्ड नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए वी नीड some networking device, and that device will route this message, this packet to the correct destination। तो वो नेटवर्किंग डिवाइस को कहते हैं हम राउटर, और वो हमें राउटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर नेटवर्क को हमें इस पैकेट को रिसीव करना है। ठीक है, ओके, वेल आवर सेकेंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर। हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी डेटा अपर लेयर से रिसीव हो रहा है उस मैसेज के साथ हम ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अपेंड कर देते हैं जिसको हम सेगमेंट कहते हैं। इस सेगमेंट के साथ हम नेटवर्क लेयर का हेडर अपेंड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ पैकेट, एंड व्हेन दिस मैसेज एंटर इनटू डेटा लिंक लेयर देन वी कैन अपेंड डेटा लिंक लेयर हेडर। ठीक है, इस डेटा लिंक लेयर हेडर के साथ हम एक ट्रेलर भी अपेंड करते हैं। ठीक है, दिस ट्रेलर इज यूज हियर ओनली, अदर लेयर में हम ट्रेलर यूज नहीं करते हैं। इस लेयर में यूज करते हैं एरर करेक्शन डिटेक्शन के लिए, जो कि हम डेटा लिंक लेयर में पढ़ेंगे कि हाउ वी यूज एरर करेक्शन डिटेक्शन टेक्निक। एंड डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होप टू होप डिलीवरी। हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी वेब क्लाइंट मैसेज सेंड करता है इसका मतलब एप्लीकेशन वांट टू कम्युनिकेट विथ एप्लीकेशन दैट इज एग्जीक्यूटिंग इन द सर्वर पार्ट। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो वी नीड ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये जो सिस्टम है दिस होस्ट बिलोंग्स टू सम नेटवर्क। ठीक है, दिस होस्ट बिलोंग्स टू सम नेटवर्क। तो इसके लिए हम यूजिंग नेटवर्क लेयर वी कैन रीच टू द रिक्वायर्ड नेटवर्क। तो इसमें हम लॉजिकल एड्रेसिंग यूज करते हैं।
ठीक है, ठीक है। अब हम अगर हम पर्टिकुलर नेटवर्क तक अगर हम पहुंच जाते हैं, आफ्टरवर्ड वी नीड टू रीच एट दैट फिजिकल डिवाइस। तो फिजिकल डिवाइस पे रीच करना है हमें, क्योंकि इस नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम होंगे और सभी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो स्विच से कनेक्टेड होंगे। ओके, सो हमें फिजिकल एड्रेस की रिक्वायर्ड है कि किस होस्ट पे हमें जाना है जहां पे वो हमारा रिक्वायर्ड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है। देन यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस वी कैन कम्युनिकेट विद दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हमने फ्रेमिंग देन होप टू होप डिलीवरी देख लिया। देन डेटा लिंक लेयर विल ऑल्सो यूज फॉर फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल सर्विस। वेल, आवर लास्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। जो भी फ्रेम डेटा लिंक लेयर से आ रहा है दैट इज रिसीव्ड इन द फिजिकल लेयर। यहाँ पे फिजिकल लेयर विल कन्वर्ट द बिट्स टू सिग्नल्स एंड इन द फिजिकल लेयर there are multiple encoding techniques is used. So some are line encoding, some are line encoding technique या block encoding technique. These techniques are used to convert bits to signals. यहाँ जो फ्रेम हम देख रहे हैं ना, that frame is in the bit format. ठीक है, सो ये जो हमारा फ्रेम है कि हमारा डेटा है, देन यहाँ ट्रेलर था इसका, ठीक है, डेटा के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, देन नेटवर्क लेयर का हेडर, देन डेटा लिंक लेयर का हेडर। तो ये जो हम फ्रेम देख रहे हैं दीज आर बिट फॉर्मेट। ठीक है, दिस बिट इज कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल यूजिंग दिस मेथड्स, लाइन इनकोडिंग और ब्लॉक इनकोडिंग, जो भी अप्रोप्रिएट है उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल लेयर इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और इस सिग्नल को ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो सेंड कर देता है। सो फिजिकल लेयर डिफाइंस द इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम ऑल्सो, एंड ट्रांसमिशन रेट ऑल्सो इज डिफाइंड बाय द फिजिकल लेयर। ठीक है, and channel simplex mode है या duplex mode है, that is also defined by the physical layer, right? So now we will see when two communication devices communicate to each other, then how messages are traversed through each layer and received at the receiver end. Okay, और हम यहाँ राउटर भी देख रहे हैं। नाउ राउटर में हम सिर्फ 3 लेयर्स यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर इज नॉट यूज इन राउटर बिकॉज राउटर इज द प्योर नेटवर्किंग डिवाइस और इट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर ट्रांसमिशन। ओके, सो जब भी यूजर कोई मैसेज सेंड करेगा यहाँ, सो फाइनली इन द सेशन लेयर वन डेटा इज क्रिएटेड, दिस डेटा एंटर इनटू ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अपेंड कर देंगे, राइट। जब ये नेटवर्क लेयर में रिसीव होगा इसको हम कहते हैं सेगमेंट। जब नेटवर्क लेयर में रिसीव होगा तो हम नेटवर्क लेयर का हेडर अपेंड कर देंगे एंड देन टी, देन डेटा। जब हमारा डेटा लिंक लेयर में आएगा तब हम डेटा लिंक लेयर का हेडर अपेंड कर देंगे जिसको हम एच बोलते हैं, देन एन, टी, देन डेटा और उसके साथ साथ ट्रेलर। ठीक है, और ये जो फ्रेम फॉर्म हुआ है डेटा लिंक लेयर में, दिस इज इन द बिट फॉर्मेट और ये बिट रिसीव होगा फिजिकल लेयर में। दिस बिट इज कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल। ठीक है, और ये सिग्नल जो है इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू राउटर को रिसीव होगा। अगर मेरा डेस्टिनेशन होस्ट डिफरेंट नेटवर्क में है तो ये एक राउटर को रिसीव होगा, देन राउटर में जब वो एंटर होगा सिग्नल,
then this signal is converted into bit, and this bit means this frame is received at the data link layer, क्योंकि यहाँ राउटर को एनालाइज करना है पैकेट को कि व्हाट इज द नेक्स्ट एड्रेस, इस पैकेट को किस इंटरफेस से हमें फॉरवर्ड करना है, तो इसके लिए उसको नेटवर्क लेयर के हेडर को आइडेंटिफाई करना होगा, मॉनिटर करना होगा। तो जब वो डेटा लिंक लेयर में आएगा, देन डेटा लिंक लेयर का जो हेडर है दैट विल बी रिमूव्ड, एंड विद इन नेटवर्क लेयर जो हेडर है इसका एन टी देन डेटा, दिस नेटवर्क हेडर इज एनालाइज्ड इन द राउटर, और इसमें जो भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ये फॉरवर्डिंग टेबल को वेरीफाई चेक करेगा, और एज पर फॉरवर्डिंग टेबल दिस पैकेट इज फॉरवर्डेड टू द सम अदर ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो जब वो दोबारा से ट्रांसमिट करेगा, देन अगेन ऑल दी हेडर्स इज अपेंडेड। सो पहले यहाँ एन था, एन टी देन डेटा, फिर जैसे ही ये डेटा लिंक लेयर में आएगा, डेटा लिंक लेयर में, देन डेटा लिंक लेयर का यहाँ हेडर हम यहाँ अपेंड कर देंगे। ठीक है, और इन द फिजिकल लेयर दिस बिट इज कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल, एंड दिस सिग्नल विल रीच टू दिस राउटर। इस राउटर में भी सेम वेरिफिकेशन होगा, फिर से नेटवर्क का हेडर को एनालाइज किया जाएगा, जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और फाइनली दिस पैकेट इज रीच टू द फिजिकल लेयर। देन वन बाय वन उस पैकेट का जो हेडर है वो रिमूव करेंगे हम। यहाँ डेटा लिंक लेयर में हम पहले फ्रेम को रिमूव करेंगे, दिस फ्रेम इज इस फ्रेम का जो हेडर और ट्रेलर है दोनों रिमूव हो जाएगा। देन विद इन नेटवर्क लेयर हम जैसे ही आएंगे वैसे ही ये नेटवर्क लेयर का हेडर रिमूव हो जाएगा, और दिस सेगमेंट इज ट्रांसमिटेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और फिर इस ट्रांसपोर्ट लेयर में ये हेडर को रिमूव कर दिया जाएगा, और दिस डेटा इज फॉरवर्डेड टू द अपर लेयर। ठीक है, और इस तरह से हमारा मैसेज जो है फाइनली यूजर को रिसीव हो जाएगा। सो दिस वे कम्युनिकेशन इज पॉसिबल using this OSI model. Okay, so now we come to TCP/IP. TCP/IP it is the substitute of the OSI model. ठीक है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम सिर्फ एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेटवर्क लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर ले रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर को अगर हम OSI मॉडल से कंपेयर करें, देन OSI मॉडल में हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर, then presentation layer, then session. This all three layer are collectively included in the application layer, जहाँ पे हम डेटा क्रिएट करते हैं। that data is forwarded to the transport layer, जो कि as it is हम OSI मॉडल का ही यूज कर रहे हैं। then this segment is come into the network layer, जो कि हमने OSI मॉडल में देखा था, जहाँ यहाँ पे TCP/IP हम इंटर नेटवर्क लेयर बोलते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम पैकेट का फॉर्मेशन करते हैं। देन दिस पैकेट व्हेन इट इज रिसीव्ड विद इन डेटा लिंक लेयर, देन इट बिकम्स फ्रेम। ठीक है, सो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर यूज कर रहे हैं। इस नेटवर्क एक्सेस लेयर में मेरा डेटा लिंक प्लस फिजिकल, ये दोनों कंबाइंडली है यहाँ। सो डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर कंबाइंडली कॉल्ड एज नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, देन पैकेट विल ट्रांसमिटेड टू द मीडियम। ओके, वेल स्टूडेंट्स, सो आज हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। हमारा आज जो OSI मॉडल था वो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी IPv4 addressing, and you can see other lectures also. So we will meet in the next session. Thank you.